So, hi, good evening, everyone. How are you all? I hope everyone is doing great. So, let me introduce myself once again. My name is Pallavi, and I welcome you to my chemistry class. So, we are learning carbon and its compound today, and this is the fifth part of this chapter. Okay, so we have learned many things in our previous session. So, today we are going to learn about the ethanol. Ethanol, that is some important carbon compound. Ethanol क्या है? ये कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम लर्न कर रहे हैं। दैट मीन्स टॉपिक क्या है? Carbon and its compound. So in this topic, we are going to learn the important carbon compound, and that is ethanol. Ethanol is also known as ethyl alcohol. Okay, ethanol को हम ethyl alcohol भी बोलते हैं. And you know what? This is the second member of the this is the second member of the homologous series of alcohol. Homologous series of alcohol means अल्कोहल के होमोलोगस सीरीज, दैट मींस सेम सीरीज में ये सेकेंड मेंबर है। तो फर्स्ट मेंबर कौन सा है, हम लोग को ये एक डाउट है। फर्स्ट मेंबर हो गया मिथेनॉल, दैट मींस मिथाइल अल्कोहल, और सेकेंड मेंबर क्या है? इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है। ओके, सो हियर आई एम राइटिंग इथेनॉल is the second member of the homologous series that is alcohol. Homologous series of alcohol. ठीक है, अल्कोहल के होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर है। फर्स्ट मेंबर कौन सा है? मिथाइल अल्कोहल, दैट मींस मिथेनॉल। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इथेनॉल? सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन द फॉर्मूला, दैट इज C2H5OH, which is also known as ethyl alcohol, and we can also write it like that. हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक कि CH3CH2 and OH. So we can write down it like that also. Sure, it is attached with single bond. Okay, and what is the common name? So common name of ethanol is ethyl alcohol. Okay, okay, so now we are moving forward and we are going to see the physical properties of ethanol. की physical properties कैसी होगी? तो we are going to learn it one by one. Okay, तो इथेनॉल इज इन लिक्विड फॉर्म, और ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? कलरलेस लिक्विड होता है। ओके, the next physical property is a pleasant smell. Ethanol having the pleasant smell. I think everyone likes the smell of ethanol. सबको अच्छा लगेगा। So pleasant smell होता है इसका। Burning taste, but अगर इसे हम by the way टेस्ट कर ले तो it can cause burning on our tongue. मतलब ऐसा फील होगा जैसे टंग बर्न होता है। So let me explain like that कि सबने होम्योपैथ मेडिसिन, वो मीठी सी गोलियां सबने टेस्ट की होगी। मीठी सी गोलियां जब हम टेस्ट करते हैं उसमें क्या होता है? लास्ट में उसमें कुछ वाटर फॉर्म का केमिकल होता है। अगर वो अपने टंग पे आए तो कैसा फील होता है? बर्निंग टाइप का फील होता है। ओके, so that type of taste ethanol have. Okay, that means the burning taste. Okay, so next physical property of ethanol. So I'm going to change the slide and then we will see the next physical property of ethanol, that is fourth physical property. So yes, let me increase the 4. Okay, so the next physical property of ethanol is low boiling point. बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होता है, दैट मीन्स कि 78 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स, और कैल्विन में इसको कितना कर सकते हैं? तो 351 कैल्विन पे ये बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, देन इथेनॉल कंटेनिंग 5% ऑफ वाटर इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। इसको क्या बोला जाता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट बोला जाता है। किसको? जब इथेनॉल में 5% वाटर हो और रेस्ट 95% क्या हो? इथेनॉल हो, तो इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलेंगे। बट व्हाट हैपन अगर 100% इथेनॉल हो, तो उसको किस टाइप क्या बोलेंगे? ओके, सो दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल।
Okay, so 100% pure ethanol is called absolute alcohol. उसको absolute alcohol बोलेंगे. Okay, ethanol has no effect on any litmus paper. क्यों कोई effect नहीं होता litmus paper पे? क्योंकि ethanol neither acidic होता है nor basic होता है. ना acid होगा ना base होगा. जब ये न्यूट्रल होगा तो इसका क्या होगा? अगर एसिडिक होता तो ब्लू लिटमस को रेड टर्न करता, अगर बेसिक होता तो रेड को ब्लू टर्न करता. बट जस्ट बिकॉज इट इज न्यूट्रल तो ये क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा. लिटमस पेपर को चेंज ही नहीं करेगा, टर्न ही नहीं करेगा. ओके, सो दैट इज द physical property of ethanol. Okay, now we are moving forward and we are going to learn a very amazing, very important properties of the ethanol. And what is that? That is the chemical properties of ethanol. ठीक है, हमने कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सारे देखे हैं, कभी हम इथेनॉल के केस में भी वही देखेंगे. So let us start with the first chemical property, and first one is the combustion. Combustion क्या होता है? That means the burning, something burning. Okay, तो क्या होता है? The ethanol is highly inflammable. That means बहुत जल्दी ये फायर को कैच करता है. कैच फायर क्विकली एंड बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल लिक्विड है, तो इसलिए इसको फ्यूल में भी मेनी टाइम्स इसको फ्यूल में भी यूज किया जाता है. ठीक है, तो बेसिकली वे हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड एंड कैच फायर क्विकली. तो कैसे होता है कम्बशन, इसकी बर्निंग कैसे होती है? वेट, तो क्या होता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न होता है, दैट इज इथाइल अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल बर्न होता है, तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा प्लस वाटर बनाएगा. सॉरी, नॉट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है प्लस वाटर बनाता है, हीट एंड लाइट, बहुत सारा हीट रिलीज करता है. क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली बर्न हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे, तो इस वजह से ये क्या करेगा? बहुत ज्यादा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा. ओके, सो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. Okay, by mistake I have written oxygen gas, that is carbon dioxide gas. So now we are moving forward and we are going to see more in this. So let me change the slide first and then we will learn about that. So yes, where is page number? Okay, so yes. So yes, from where we get ethanol? So basically, let me increase the font size here. Yes, so ethanol is produced on large scale by sugar cane से produced होता है. कैसे? तो जब हम सुगर केन को उसको सुगर बनाने के लिए उसका क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो उसके साथ एक ब्राउन कलर का थिक विस्कस लिक्विड फॉर्म होता है. उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? उस लिक्विड को हम बोलते हैं मोलासिस. ओके, उस लिक्विड को हम बोलते हैं मोलासिस. मोलासिस में थोड़ी अमाउंट में क्या होता है? सुगर केन जूस प्रेजेंट होता है, जिससे हम क्या बनाते हैं? इथेनॉल बनाते हैं. ओके, तो इथेनॉल किससे फॉर्म होता है? मोलासिस. मोलासिस कहाँ से मिलता है? सुगर केन से. ठीक है, नाउ द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द इथेनॉल, दैट इज ऑक्सीडेशन. Oxidation, that means something addition of oxygen. We have learned the oxidation and reduction reaction. So oxidation is the addition of oxygen and removal of hydrogen. Okay, so ethanol is heated with alkaline potassium permanganate. किसके साथ ये हीट किया जाता है? अल्कलाइन. अल्कलाइन दैट मीन्स बेसिक. ठीक है, अल्कलाइन दैट मीन्स बेसिक पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ इसको जब हम हीट करते हैं, जब ऑक्सीडा फिर ये क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड होके इथेनोइक एसिड बनाता है. ओके, so that is ethanol when it get heated in the presence of oxygen with alkaline KMNO4, that is potassium permanganate. ठीक है, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 भी यूज करते हैं. एसिडिफाइड दैट मीन्स कि एसिडिक नेचर उसका होगा, तो क्या बनाता है? ये बनाता है इथेनोइक एसिड. ओके, एंड वाटर फॉर्म होता है. So that is oxidation of ethyl alcohol, that means ethanol. Now we are moving towards the third chemical properties of the ethanol. And what is that? So that is reaction with sodium metal. What happened when ethanol react with sodium metal? So ethanol react with sodium to form sodium ethoxide and hydrogen gas released during the
रिएक्शन क्या बनाएगा, सोडियम इथोक्साइड बनाएगा। कैसे? जब हम सोडियम इथाइल अल्कोहल को सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनाता है C2H5O माइनस प्लस Na प्लस। ओके, इसको हम बोलते हैं सोडियम इथोक्साइड। ओके, दैट वन इज सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। So now we are moving forward and we are going to learn the next chemical properties. And what is that? That is reaction with sorry, dehydration. Okay, so let me change the slide and then we will see the next thing, and that is dehydration. So here we have, yeah, so let me change, increase the font size here. So yes, dehydration, that means removal of water. Hydration क्या होता है? जब water add होता है, hydrated बोलते हैं जब water होता है। But dehydration क्या हो गया? That means water को remove कर दिया गया, water को हटा दिया गया। ठीक है, so dehydration, that means removal of water molecule from it. So what happened when dehydration of ethanol is carried out in presence of concentrated सल्फ्यूरिक एसिड? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे क्या किसका काम करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। ओके, तो H2SO4 एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसके प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कैरिड का होता है। ठीक है, concentrated H2SO4 at temperature what 173 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम बोल सकते हैं 443 केल्विन में टेम्परेचर ये होगा। डिहाइड्रेशन कैरिड आउट होगा, तब ये क्या फॉर्म करेगा? उसके बाद ये फॉर्म करेगा दैट इज इथिलीन। ओके, इथिलीन, दैट मींस CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड वाटर रिलीज होगा। ओके, दैट मींस ये वाटर क्या हो गया? रिमूव हो गया। ठीक है, so here I am writing remove. ठीक है, so that is dehydration of ethanol. Now we are moving forward and we are going to see fifth chemical properties of the ethanol. And what is that? That is reaction with ethanoic acid. Ethanoic acid नाम तो क्या होता है? जब इथेनॉल इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करेगा तो वहां पे एस्टर फॉर्म होगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एस्टेरिफिकेशन बोलेंगे। किसको एस्टेरिफिकेशन बोलेंगे? सो व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विथ इथेनोइक एसिड, ester is formed and that process is known as esterification. Okay, so let's move forward and see what happened here. Reaction with ethanoic acid on warming, जब इसको वार्म करते हैं, नॉर्मली नहीं। ओके, in the presence of few drop of concentrated H2SO4, यहाँ भी हम concentrated H2SO4 यूज करते हैं। ओके, बट ज्यादा नहीं, बस कुछ ड्रॉप उसके, टू फॉर्म स्वीट स्मेल एस्टर। और एस्टर का स्मेल कैसा होता है? स्वीट होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इसकी वजह से क्या, इसको परफ्यूम वगैरह में भी यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके स्वीट स्मेल की वजह से। ओके, तो लेट अस सी when ethanoic acid, that is CH3COOH, ये क्या है? इथेनोइक एसिड है। ये जब रिएक्ट करता है इथेनॉल से in presence of concentrated H2SO4, it form ethyl acetate. ओके, और H2SO4 ethyl acetate, that means इसको हम एस्टर भी बोल सकते हैं। ओके, और एस्टर। ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। So I hope esterification is clear. So we are moving forward and we are going to see some important thing. And yes, what test we can conduct to recognize the ethanol? Ethanol को recognize करने के लिए, उसको टेस्ट पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं? तो सोडियम मेटल टेस्ट कंडक्ट करते हैं। दैट मीन्स हमने देखा था सोडियम मेटल से जब ये रिएक्ट करता है तो क्या होता है रिएक्शन। अदर टेस्ट हम क्या कर सकते हैं? ये ईस्टर फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर वाला टेस्ट करके भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इथेनॉल है। ओके, so let's move forward and we are going to see the uses of ethanol. So let me change the slide here and then we will see the uses of ethanol. So here we have our desired slide. Okay, so let us start with the first use. Let me increase the font size. Decrease.
ओके, सो फर्स्ट यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट की मैन्युफैक्चरिंग में, मेडिसिन या फिर डाइज बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए या सिंथेटिक रबर के लिए, इन सारी प्रोसेस में क्या यूज किया जाता है? इथेनॉल को यूज किया जाता है. सो वी कैन सी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, मेडिसिन, परफ्यूम्स, डाइज, सोप, synthetic rubber. So in this process, ethanol are used. The next use used as solvent. Many organic compound which are not dissolved in water, that organic compound can dissolve in इथेनॉल. ओके, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, वो किस में डिसॉल्व होते हैं? इथेनॉल में डिसॉल्व होते हैं. उन्हीं को क्या बोलते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं. एक्वस सॉल्यूशन क्या है? जो वाटर में डिसॉल्व. नॉन एक्वस क्या है? अदर देन वाटर. दैट मीन्स इथेनॉल में, बेंजीन में, इन सारी चीजों में डिसॉल्व हो तो वो क्या होते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन होते हैं. ठीक है, तो यूज एज सॉल्वेंट. The next is being a good, just because it is a good solvent, it is used in medicine. That means tincture of iodine फॉर्म करने के लिए. आयोडीन किस में डिसॉल्व होता है? अल्कोहल में. दैट मीन्स इथेनॉल में डिसॉल्व होता है. फिर कफ सिरप की फॉर्मेशन में भी इसको यूज किया जाता है. मेडिसिन, दैट मीन्स कफ सिरप बनाने में भी इथेनॉल को यूज किया जाता है, अल्कोहल को. ठीक है, या फिर बहुत सारे टॉनिक्स होते हैं, उनमें भी इथेनॉल को यूज किया जाता है. The next use of ethanol, that is fourth use as fuel in car along with petrol. के साथ कार में इथेनॉल को भी यूज किया जाता है. ठीक है, so that is fourth uses of ethanol. Now fifth use, used in alcoholic drink like wine and beer, ethanol are also used. Okay, then the sixth use of ethanol is used as an antiseptic to sterilize wounds. और सिरिंज जो हॉस्पिटल में होते हैं, उनको स्टरलाइज करने के लिए इथेनॉल को यूज किया जाता है, ताकि उनमें कोई भी बैक्टीरिया या फिर जर्म्स वगैरह हो तो वो क्या हो? वो रिमूव हो, स्टरलाइज हो जाए. दैट मीन्स वो रिमूव हो जाए, वो डाई हो जाए, दैट मीन उनको मार सके, उनको रिमूव कर सके, इसके लिए यूज होता है. तो दैट इज ऑल अबाउट द इथेनॉल, that is ethyl alcohol. So in next session, we are going to learn the next carbon compound and what is that? So that is ethanoic acid. Okay. So this is all for today, everyone. So I hope you have enjoyed the session. So bye everyone. Take care, keep learning and keep smiling. Good night.